من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیاء امرنا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: عزاداری کیوں ضروری ہے؟ حضور والا، چونکہ آج سفر کی 27 تاریخ ہے اور دھیرے دھیرے کر کے عزاداری کا سلسلہ اپنے آخری مراحل تک پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ ہم سب نے اپنے اپنے علاقے میں عزاداری کو فروغ دینے کی حتی الامکان کوشش کی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ عزاداری کا سلسلہ ہر علاقے میں 2 مہینہ 8 دن تک حد اقل قائم رہے۔ بقیہ تو یعنی انسان ایصال ثواب کے غرض سے، ایصال ثواب کی نیت سے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلسوں کو عزاداری کے سلسلے سے جوڑے رکھتا ہے، جو سال بھر تک ہم اس سے وابستہ رہتے ہیں۔ ایک سوال جو میں بار بار کرتا ہوں اور بار بار اس موضوع پر روشنی ڈالی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، موضوع یہ ہے کہ عزاداری کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج اغیار اگر ہمیں دیکھ لے اور اغیار ہمیں صرف اس نظریے سے اور اس انگیزے سے، اس نظر سے دیکھے کہ یہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے، شؤون عزا ہے، صورت عزا ہے، یہی اگر ظاہری صورت میں امام حسین علیہ السلام کے شخصیت شناسی، مقصد کی معرفت اور ان کے اہداف کے روش کو اگر اغیار ان چیزوں سے نکالنا چاہے تو آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے کہ شؤون عزا، صورت عزا کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں بار بار یعنی جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ جو آج ہمارے سماج میں کچھ نیا کرنے کی جو کوششیں جاری ہیں، اور خصوصی طور پر ہمارے پڑوس کے ملک سے جتنی بھی رسمیں، جتنے بھی نئے نئے طریقے، جتنے بھی نئی نئی بعض روایتیں، جتنے بھی نئے نئے بعض نظریات وہاں سے آ رہے ہیں، تو اب ضروری یہ ہے کہ جو حضرات یعنی اس منزل پر اور مرتبے پر ہوں جہاں پر ان کی اپنی اخلاقی اور دینی اور شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غلط اوہام کو، غلط چیزیں جو رائج ہو رہی ہیں، جو ترویج پا رہی ہیں، اس کی روک تھام کرنا ہر منبر پر آنے والے کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اوہام پرستی سے
وہ چیزیں جو دین کے چہرے کو، وہ چیزیں جو عزاداری کے چہرے کو، وہ چیزیں جو شعون ادا کو، وہ چیزیں جو صورت ادا کو یعنی خراب کرنا چاہتے ہیں یا خود شیردار کرنا چاہتے ہیں، ضرورت یہی ہے کہ اس کی وہ صحیح رہنمائی کریں اور جو لازم اقدام ہو سکے، قدم ہو سکے، اس کے خلاف اٹھانا بھی چاہیے۔ جیسے ہم نے کئی مثالیں دی تھیں علیہ السلام، اور ہم نے کئی باتیں عرض کی تھی کہ ایک یہ جو آج ہمارے یہاں 72 علم، جیسے ہمارے یہاں کانپور کا بینر دیکھ لیجئے، امبیڈکر نگر میں ایک آدھا بینر ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اور دوسری جگہ پر بینر آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ 72 علم، 72 پنجے تو سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ یہ سب مل کر کے سارے پنجے ایک علم میں آ جائیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ یعنی ایک علمدار سے اگر 72 علمدار بنا دیں گے، ایک علمدار حسینی سے اگر 72 علمدار حسینی بنا دیں گے، تو یہ ایک نظریہ دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں کیا جائے گا؟ علیہ السلام، یہ نظریہ دوسرے افکاروں میں کیا جائے گا؟ کیا مطلب ابھی تک جو لوگ عزاداری کرتے آ رہے تھے انہیں ایک ہی علم مولا عباس کا نظر آتا تھا، 72 علم نہیں نظر آئے تھے؟ یہ ایک لمحے فکریہ ہے جس پر یعنی ہمارے ان افرادوں کو جو اس طریقے کے پروگرام برپا کرتے ہیں، ذرا سی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ توجہات رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مس گائیڈ کرنے کا بہترین موقع مل جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ آج اگر آپ غور کیجئے تو 72 پنجے تو آپ سمجھ میں آئیں گے، لیکن اگر 72 علم اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ایک ذہن کو کیا کرتا ہے، نئے اور نئی چیزوں کی طرف ہمیں گائیڈ کرتا ہے، نئی رواجوں کی طرف ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ کیا ایسے افراد یعنی جو علمدار لشکر یا علمدار حسینی ہے اس کے مقابلے میں اور بھی چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ایک پہچان تھی علمدار حسینی کی، لشکر حسینی کی، کیا اس پہچان کو کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں؟ بھائی جب تک کوئی چیز کم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کے نام سے آپ کئی چیزیں اگر اضافہ کرتے چلے جائیں تو وہ جو نسبت پہلے والے کی تھی وہ نسبت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ وہ نسبتاً پہلے کی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہونے لگتی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمارے یہاں کیا ہونی چاہیے؟ توجہات ہونی چاہیے کہ کم سے کم عنوان آپ صحیح رکھیں، کیونکہ عنوان جو بھی ہوتا ہے یہ ہماری پہچان ہوتی ہے۔ یعنی جیسے اگر ایک کتاب ہے، کتاب کا دیباچہ ہے، کتاب کا انٹروڈکشن ہے، کتاب کا تعارف ہے، کتابوں کی فہرست ہے، صحیح ہے، کتابوں کی سرفیس ہے، آپ اس کو ذرا سا دیکھیے تو آپ انہی فہرست سے کتاب کا اندازہ لگا لیں گے کہ یہ ہے کیا۔ لیکن اگر آپ فہرست نہ پڑھیے تو آپ پوری کتاب تو پڑھیں گے نہیں۔ تو اب یہ جو ہمارا عنوان اور ٹائٹل ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کا، یہ ٹائٹل خود بتاتا ہے کہ پروگرام کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج دشمن کا مشن، میرے عزیزوں، جو دشمن کا مشن ہے وہ جانتا ہے کہ اسے شکست ہر طرف سے ملی ہے۔ ہم عزاداروں سے ملے، ہم عزاداری کے بچانے والوں سے ملی۔ آج جو لوگ اربعین باغ پر جاتے ہیں سوچتے ہیں عراق میں بہت امنیت ہے، ان امنیت کے پیچھے دیکھیے قربانیاں کتنوں کی کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ خون کتنے شہیدوں کا بہا ہے کبھی آپ نے دیکھا؟ ورنہ ابھی اسی سال آپ دیکھیے 22 ٹیرورسٹ نہ پکڑے جاتے ہیں۔
वो भी करबला में। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुर्बानी देने वाले, और हम सोचते हैं कि हमें बहुत आसानी से सारी चीजें मैसर हो गई, हमें बहुत आसानी से सारी चीजें मिल गई। नहीं, अगर आप यानी कुर्बानी देने वालों की कुर्बानियों को भुलाते चले जाएंगे तो आपका अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। जैसे बहुत सारे इंसान होते हैं ना, गौर व फिक्र करने की बात, इतनी बातें मैंने कह दी। अब आप जरा सा वो कीजिएगा कि जो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के कहने पर जो एक हशदुशाबी इराक में बनी थी, जिसको वहां की गवर्नमेंट और कुछ शैतानत परवर बाहरी एजेंट जो है, जो उसको मुनहल करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, उसका एक स्टेटमेंट था उसके हेड का। उसने कहा तुम ये ना समझना कि ये खाली यहां खत्म हो जाएगा। कहा इसके जरिए ये शीयत को टारगेट करना चाहते हैं, इसके जरिए ये शीयत के पूरे वजूद को खतरे में लाना चाहते हैं। और हम क्या सोच रहे हैं, ये उनका दाखिली मसला है, ये उनका अंदरूनी मसला है, ये उनका नहीं। क्योंकि दुश्मन बहुत दूर की साजिश कर रहा है और हम आकर के सामने वाले की सामने की चीजें नहीं वो कर पा रहे हैं। हम किसे कमजोर कर रहे हैं? जो मैदान में डटने वाला है, खुद तो डटने का मौका मिलता नहीं है, हम उसे तज़ीब कर रहे हैं, हम उसे कमजोर कर रहे हैं, हम उसे आकर के उसके बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, जाकर के कुर्बानी देखिए, क्योंकि ये जो शख्सियतें होती हैं जो इस तरीके की चीजों को बचा करके रखती हैं, और हम सोचते हैं अरबईन में हमें कितना मजा आया। कभी जाकर के सोचिएगा मेरे अजीजों, यानी अज़ादारी क्यों जरूरी है? वो इसीलिए कि ये सूरत अज़ा को खराब ना किया जाए। दुश्मन क्या चाहता है? दुश्मन ये चाहता है कि अज़ादारों के दरमियान अपने एजेंटों को, दोनों बातें मैं कह रहा हूं, अपने एजेंटों को और अपने एजेंटों को, जो उनके एजेंट हैं, जो आलेकार हैं, जो बिकने वाले हैं, जो मौका परस्त मुनाफिक हैं, उनको क्या कर दे? आजादारी के मिशन में शामिल कर दे, आजादार की सूरत में इनको क्या कर दे? शामिल कर दे। वरना अगर आपके जहन में आया हो तो आप जरा सा अंदाजा लगाइएगा। मैंने किसी खुतबे में अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि ये सैयद मुकावेमा, हमारे बेहतरीन सैयद लबनानी, इनकी शहादत का अगर कोई जिम्मेदार है तो आप बता दीजिए। वो खायन जिसने करबला में नौहा पढ़ा था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी और उसने डाटा लीक किया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी शख्सियत मारी गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दुश्मन कहां तक जा रहा है और हम कहां पर जा रहे हैं। हमारी फिक्रें कहां पर जा रही हैं, हमारी सोच कहां पर जा रही है, हमारी मेंटालिटी कहां पर जा रही है, हमें किस तरफ गाइड किया जा रहा है, हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है, हमें किस तरफ सही राह दिखाई जा रही है। क्योंकि इस वक्त का जो दौर है मेरे अज़ीज़ों, बहुत होशियार बनने की जरूरत है। क्योंकि दुश्मन जो है वो कभी भी बातिल के लिबास में नहीं आता, हक के लिबास में आता। वो कभी बातिल का लिबास ओढ़ करके नहीं आएगा, हक का लिबादा ओढ़ करके आएगा। क्योंकि चार बातें अच्छी कह जाए, एक बात ऐसी कहते जाएगा कि चारों बातों के ऊपर और जो इससे पहले की बातें सब पर क्या कर देगा? सारे मिशन को, सारे मकासद को मरियमेट कर देगा, भरभन कर देगा, खराब कर देगा, सूरत को बिगाड़ देगा, सीरत को बिगाड़ देगा, मिशन को पीछे ढकेल देगा, आदाब को पीछे ढकेल देगा। उसे यही नहीं पता रहेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ये सब चीजें हैं। अब ये जो आजादारी क्यों जरूरी है, जो उन्वान है हमारा, इसके ऊपर अगर आप जरा सा गौर व फिक्र कीजिए तो आज इस दौर में 2025 में आपने देखा दुश्मन ने शिकस्त वैसे खाया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। खाया किससे? ये हमारे हिंदुस्तानियों के आजादारों से नहीं खाया, खाया उससे
जिन्होंने हकीकत में अज़ादार और अज़ादारी की पहचान, मकसद अज़ा को और हुसैन की अज़ा को ज़हन में रख करके उन्होंने अमली जामा पहनाया कि समाज में हम कैसे रहते हैं, जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे रहते हैं, दिफा करने का मौका आ जाए तो हम कैसे रहते हैं, हम जब मेहराब में आते हैं तो कैसे रहते हैं, मिंबर पर आते हैं तो कैसे रहते हैं, हम जब जाहिर समाज में आते हैं तो कैसे रहते हैं। ये सब देखना है तो उन शुहदा को देखिए जिन्होंने अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दे करके आजादारी को बचाने में और मकसद हुसैन को आगे ले जाने में बेहतरीन किरदार निभाया है। सही है। अब इसी चीज को अगर आप और हम जरा सा गौर व फिक्र करना शुरू कर दें तो आजादारी का तौर तरीका, रिवाज, रसूमात पाई जाने वाली दूसरे तौर तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जहां से तौहीन अज़ा हो उस पर हमें क्या करना चाहिए, उस पर हमें रोकथाम करनी चाहिए। जहां पर तौहीन अज़ा, सूरत अज़ा, सीरत अज़ा, ये जो नया करने की एक चाह और उमंग नौजवानों के जज्बे में पैदा हो रही है, इन नौजवानों को सही गाइड करने की जरूरत है, इन नौजवानों को सही बतलाने की जरूरत है। अब आप जरा सा अंदाजा कीजिए, ये नौजवान आज गौर कीजिए, वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी में आप अपने हर इलाके के एक आधी मजलिस नहीं, सारी मजलिसों की वीडियो उठा करके देखिए और उसमें देखिए कौन कितनी मजलिसों में किसकी किसकी शिरकतें हैं, कितनी शिरकतें हैं, कितना दिखाई देता है, कितना आता। ये क्या है, ये चीजें बतलाने की जरूरत नहीं है, ये अमलन किरदार है कि जो हम देख सकते हैं और अपना फैसला कर सकते हैं कि हम कहां पर हैं। लेकिन जो चीजें जाहिरी सूरत में नजर आती हैं वो यही कि जहां पर एक आजादार को तबलीग दीन के जरिए कुछ चीजें हासिल करनी चाहिए थी, ये एक आलिम को सुनता कब है। आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चलन आप जरा सा देख लीजिए, जितने स्टेटस नौजवानों के लगते हैं, चाहे लड़कियों के हों, चाहे लड़कों के हों, चाहे हमारे यूथ के हों, चाहे हमारे ग्रुप में आने वाली छोटी छोटी क्लिपें हों, ये ज्यादातर आप देखिए पाकिस्तानी जाकरों की आ रही है, हिंदुस्तानी जाकरों की आ रही है। एक सवाल है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब यह है कि आजादारों के जहनों को डाइवर्ट कैसे करना है, ये अनजाने में हम बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं, अनजाने में हम बहुत अच्छी तबलीग दीन कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो वहां से जो चीजें आ रही हैं उसको हम अपने स्टेटस के जरिए क्या कर रहे हैं, ज़हनों तक, आम ज़हनों तक ज़मीना साजी कर रहे हैं और धीरे धीरे उन अफकार की तरवीज कर रहे हैं जो बाज गलत अफकार हैं। हम उन अफकार की तरवीज कर रहे हैं जो बाज गलत नजरियात रखते हैं, जिसमें बाज में उलमा की तौहीन, मुज्तहिदीन की तौहीन, साहिब इल्म की तौहीन, साहिब अज़ा की तौहीन, मुबल्लिगीन की तौहीन, बहुत सारी चीजें, उलमाए आलाम, मुज्तहिदीन, फुक़हा, इनकी तौहीन। यानी ये क्या है, यानी एक आने वाला 10-20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान आकर के जब वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के मुज्तहिदीन के खिलाफ जब जबान खोलता है तो उसकी उतनी उम्र भी नहीं होगी जितना इसने इल्म में अपनी उम्र गुजारा होगा, लेकिन जबान चलने में, जबान को बयान करने में। तो अब ये जो गलत नजरियात हैं जो आजादारी के नाम पर राइज किए जा रहे हैं, इसकी रोकथाम कौन करेगा? अगर इसकी रोकथाम की जाए तो इसकी रोकथाम करने के लिए कौन आलिम आएगा, कौन उलमा आएंगे, कौन फुक़हा आएंगे,
क्या अगर हर चीज सारी मर्जे किरामी मैदान में आकर के उतरे, क्या ये चीजें हमारी अकलों में आने वाली हैं? नहीं। तो मेरे अजीजों, कहने का मतलब यह है कि जो बातिल अफकार आजादारी की छोटी छोटी क्लिपों के जरिए जो हमारे यहां लाए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए उन अफकारों को ना लाइए, उन फिक्रों को ना लाइए, उन चीजों की तरवीज ना कीजिए, वरना कल कयामत के दिन, यानी अगर पैगंबर ने, आले पैगंबर ने, मासूमीन ने, अहले बैत ने वहीं पर रोक लिया, वो ये नहीं कहेंगे आप जाकिर थे, वो ये नहीं कहेंगे आप आलिम थे, वो ये नहीं कहेंगे आप खतीब थे। इतना कहा जाएगा कि इनको रोक लो, इन्नहुम मसऊलून, अभी ये बहुत जिम्मेदार हैं, इनसे बहुत कुछ पूछना है। इनसे ये कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा ये आलिम है, ये खतीब है, ये जाकिर हैं, ये शायर हैं, ये मातमदार हैं, ये कुछ हैं। कहा इन्हें रोक लो, ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, इन्नहुम मसऊलून, अभी इनसे बहुत कुछ पूछना है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। क्यों? इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा कि घंटा भर तुमने वक्त लिया, उस घंटा भर में कितनों को हिदायत का रास्ता दिखाया। इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछा जाएगा। तो हर आने वाले की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और हम सोच रहे हैं अरे जिसको चाहे मिंबर पर बिठा दे, कौन क्या करने वाला। नहीं, जितना उसकी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदार वो भी है जो उस आलिम को या जाकिर को या खतीब को या शायर को या किसी और को लेकर के आकर के मिंबर पर बिठा रहा है, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। उससे भी शहजादी कल कयामत के दिन सवाल कर लेंगे, ये बता दे कि तू फितना पैदा करने के लिए लाया था या इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए लाया था। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। और यहीं पर उन्हें भी कटघरे में ला करके इकट्ठा कर दिया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा, जो ऐसी उस पर दाद भी देते हैं। उनसे भी पूछा जाएगा, ये जो तूने दाद दिया, दाद देने का मतलब तेरी तायीद है। अब तायीद है तो बता हक क्या था, बातिल क्या था। दाद दे रहा है तो बता सही क्या था, गलत क्या था। दाद दे रहा है, बता इसके अंदर तू हदीस से वाकिफ कितना था, ये बता दे। इसके अंदर ये हदीस सही कितनी थी, गलत कितनी थी। दाद दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बातिल की या सही की तायीद कर रहा है। तो तेरी अक्ल कितनी है, चल तू भी हिसाब दे। तो क्या ये अवाम इन चीजों का हिसाब नहीं देगी? ये भी देगी। हमारे यहां तो चाहे समझ में आए या ना आए, दाद देने के लिए वो दाद देते हैं कि साहब आगे वाले चिल्ला रहे तो मैं भी पीछे से चिल्ला रहा था। सलवार तो पढ़िए कम से कम। जरा सा गौर कीजिएगा, दाद देने का मतलब यह है कि जरा सा गौर व फिक्र करो कि दाद तुम्हारी तायीद अगर गलत की बन गई और कल कयामत के दिन तुम्हें रोक लिया गया तो तुम इतनी आसानी से जा नहीं सकते हो। इस पर भी हिसाब होगा, और हिसाब किताब कोई और नहीं करेगा, वही करेगा जो आदिल मुतलक है, वही करेगा जिसको अल्लाह याद देगा, वही करेगा जो कसीमुन नार वल जन्ना होगा। क्योंकि जब वो अपने सगे भाई के साथ अदालत से पेश आ सकता है तो एक मोमिन के साथ, आलिम के साथ, अज़ादार के साथ, अज़ादारी के साथ, मोमिन और मोमिनात के साथ क्या अज़ादारी, यानी अज़ादारी करने वालों के साथ क्या इंसाफ से पेश नहीं आएगा? और यही अज़ादार कह दे, परवरदिगार ये बता दे कि इसने मेरे बारे में ये कहा था, इससे पूछ जरा सा क्यों कहा था, और फला ने तारीफ की थी तो क्यों की थी, बता। ये जा सकता है? ये बहुत अहम है। अज़ादारी कीजिए, बढ़ावा दीजिए, फरोग दीजिए, लेकिन अज़ादारी को शैतानत का अड्डा ना बनने दीजिए। क्योंकि जैसे मौला कायनात ने मस्जिद ज़िरार की रविश पर चलते हुए अपने दौरान हुकूमत में कई मस्जिदों को मिस्मार कराया क्योंकि वो शैतानत का अड्डा थी, ऐसे ही बहुत सारी जगहें जो शैतानत का किरदार निभा रही हो तो उसे बंद हो जाना चाहिए।
सलमा पढ़िए सब मिलकर के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि विलायत और सियासी शऊर। इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है क्योंकि हम सब विलायत खुदा से लेकर के हुज्जतुल्लाह तक की विलायत के कायल हैं और हम इन्हीं की विलायत पर अमल करते हैं और इन्हीं की विलायत पर अपनी जान निसार करने का जज्बा भी रखते हैं कि मौका पड़ जाए तो हमारी जानें विलायत अली पर कुर्बान हैं। और हम उनमें से नहीं है जो पीछे हट जाएं, कि विलायत अली, विलायत खुदा, विलायत रसूल, विलायत आइम्मा, ये हमें बहुत आसानी से नहीं, हमारे पाकीज़ा नफूज और पाकीज़ा तीनतों से हम तक आई हैं। हमारी माओ ने बहुत ही पाकीज़गी से जो किरदार निभाया है, तब जाके ये विरासत हम तक आई है। समझ रहे हैं? और इस विरासत को पाकीज़ा नस्लों तक अमानत की सूरत में पहुंचाना शरीफन नफ्स इंसानों का काम है। जो शरीफुन नफ्स लोग होंगे उनका काम है ये पाकीज़ा नस्लों तक। क्यों? इसलिए कि हम तो देखते ही आ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब तबलीग दीन की तो उसको 63 साला जिंदगी में उसको तबलीग दीन से, जबकि तबलीग दीन की कुल मुद्दत उसकी 23 साल है। कितनी है? 23 साल है। 23 साल में पैगंबर को क्यों जहर दिया गया? दलील दे रहा हूं, क्योंकि कल शहादत का दिन है, नाना और नवासे के शहादत का दिन है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हदीस से ही दलील दे रहा हूं, जिसमें आपने यही कहा कि मैं वैसे ही इस दुनिया से जा रहा हूं जैसे मेरा नाना दुनिया से गया था। यानी इसका मतलब क्या था? यानी मैं भी मसमूम जा रहा हूं, मेरा नाना भी मसमूम गया था। इसका मतलब जानते क्या? इसका मतलब यह है कि तबलीग दीन करना ये बहुत आसान काम नहीं है। तबलीग दीन, लोगों की रहनुमाई करना ये बहुत आसान काम नहीं है। जब पैगंबर जैसी शख्सियत जो रहमतुल आलमीन बन करके इस दुनिया में आई हो, उसको खामोश करने के लिए अगर ज़ने यहूदिया जो है जहर दे वो भी दुश्मन की साजिश से, तो इसका मतलब आप जानते क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि समाज में तबलीग दीन करना सबसे मुश्किल तरीन
काम है। और अगर कोई इस रिसालत को, इस जिम्मेदारी को अदा कर रहा है तो वो उन मसादीक में से एक मिसदाक होगा जिसमें पैगंबर ने कहा था कि हमारे जमाने के उलमा, आने वाले जमाने के उलमा ऐसे होंगे जो अंबियाए बनी इसराइल से ज्यादा अफजलियत और फजीलत रखे होंगे। तो जो हकीकी तबलीग करने वाला होगा वो पैगंबर की इस हदीस का भी मिसदाक करार पाएगा। सलवात पढ़िए सब मिल जाते समझिएगा, क्योंकि तबलीग दीन ये आसान काम नहीं है। ये रिसालत इलाहिया जो है ये बहुत आसान नहीं है। और जरा सा अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो पैगंबर को चैन से रहने दिया गया। भाई आपने 40 साल खामोशी, 23 साल तबलीग दीन किया, 23 साल में कितने जतन पैगंबर के हुए। 23 साल में पैगंबर ने हिजरत भी की, 2 हिजरतें की। अब आप जरा सा सोचिए कि जब पैगंबर को नहीं वो रहने दिया गया, इसके बाद पैगंबर जब इस दुनिया से जाते हैं तो फिर क्या होता है मालूम है। इनके जाने के बाद निशान मिटाने के लिए इनकी बेटी के ऊपर कितने दिन जिंदा रहने दिया गया। पैगंबर के अभी कफन भी मैला नहीं होने पाया था कि यही उम्मती जो मानने वाले थे आकर के पैगंबर की बेटी के दरवाजे पर आकर के दरवाजा जलाने लगे, नहीं जलाने लगे। अब जलाने वालों को के साथ क्या होना चाहिए? वही पैगंबर की बेटी। समझ रहे? वहां से आइए, मौलाए कायनात का हक जो पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं इलाही मर्जी से दे करके गए थे। और दलील यह है कि पैगंबर अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरा पैगंबर कोई गुफ्तगू ही नहीं करता जब तक कि वही ना आ जाए। तो अब ये जो आपने विलायत को पहुंचाया था ये अपनी तरफ से नहीं पहुंचाया था। और वहां पर उसी मैदान गदीर में जो मुनाफिक था, क्या उसने पैगंबर को नहीं देखा था? देखा था। पत्थर किसके ऊपर आया? वही सहाबी के ऊपर। भाई जो पैगंबर को डायरेक्ट देख ले वो सहाबी है ना। तो आया या नहीं आया? आकर के बताया कि देखो कभी कभी जो हक के मुकाबले में आता है वो चाहे जितना पैगंबर का पड़ोसी होगा, गलत होगा तो गलत है, जो सही होगा वो सही है। न किसी के कहने से कोई गलत हो जाएगा, न किसी के बदलने से कोई सही हो जाएगा। सलवात पर ये समझो। अब जरा समझिए, मौलाए कायनात का हक 25 साल खामोशी के साथ गुजरा। 25 साल 1-2 साल नहीं होते, बहुत होते हैं। उसके बाद इनके बेटे को 6 महीने के अंदर इतना मजबूर कर दिया गया इमाम की शहादत के बाद कि आपको बातिल वाले से, जो शाम का हाकिम था, उसके साथ सुलह करनी पड़ी। और इस शर्त के साथ कि तू मेरे बाबा को बुरा भला नहीं कहेगा, तू मेरे बाबा के ऊपर सब्बो शितम नहीं करेगा, और तेरे मरने के बाद तू इस हुकूमत को अपनी विरासत में तकसीम नहीं करेगी। सब शर्तें हैं। लेकिन आप बताइए कुछ वो किया गया? और ये इमाम को सुलह क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जब अपने गद्दार हो जाएं तो इमाम मासूम जैसा इंसान मैदान में डटा हुआ भी क्या हो जाता है? जाहिरी सूरत में शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद नतीजा यह होता है कि सन 50 हिजरी में आकर के इतना ज्यादा दुश्मन जो होता है काबिज हो जाता है कि यही हसन को उन्हीं की ज़ौजा के जरिए लानत दिलवा करके जहर दिला दिया जाता है। अब इसके बाद पंजतन की पहली कड़ी रसूल अकरम, पंजतन की दूसरी कड़ी सिद्दीक़े तहरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा,
पंजतन की तीसरी कड़ी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, पंजतन की चौथी कड़ी हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम, पंजतन की पांचवी कड़ी, इसको ला करके किस बेदर्दी से करबला में शहीद किया गया। अब आप बता दिए क्या पंजतन के बारे में अजमतें रिवायतों में नहीं आई हैं? आई हैं। तो अब आने के बाद जो उम्मत ने जुल्म और सितम किया वो किसके ऊपर किया? समझ में आता है? 50 से लेकर के 60 तक 10 साल में इमाम को इतना मजबूर कर दिया गया कि ये अपने वतन में भी रह नहीं पाए, इतना प्रोपेगंडा किया गया। तो अब समझ में आता है कि बहुत सारे अपराध प्रोपेगंडा करने वाले साजिशगर और शैतान हुआ करते थे कि जो सही को गलत और गलत को सही कहा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने तारीखों से सीखा है, ये हमने तारीखों से वो किया है। अब अगर आज कोई इंसान आकर के ये कहे कि साहब अजादारी, अजादार और इस तरीके से मातमदार, इस तरीके से क्यों? इसलिए कि हमने बहुत सारी चीजें करबला से ली हैं, कहीं और से नहीं ली हैं। अब आप जरा सा अंदाजा कीजिए कि जो हमारा मौजू है, मौजू क्या था? विलायत और सियासी शऊर। उन्वान ज़हन में है? विलायत को हमने पैगंबर से लेकर के सन 60 हिजरी तक लेकर के आए। क्या उम्मत ने विलायत को वैसा ही माना जैसा पैगंबर मनवाना चाहते थे? नुकसान किसका हुआ? शहादत किसे मिले? घर किसका उजड़ा? कल 28 सफर है, नाना और नवासे का ताबूत उठेगा हमारे यहाँ ज़ैनब क्लासेस में। इसके बाद यानी जो सिलसिला हमारे यहाँ शुरू होता है, अल्लाह का शुक्र है कि 1 मुहर्रम से लेकर के तकरीबन 6 रबीउल अव्वल 7 रबीउल अव्वल तक हमारे यहाँ सिलसिला कंटिन्यू आज़ादारी का कायम है। और उसी सिलसिले की जो मजलिसें हैं वो 25 अगस्त से 29 अगस्त तक, यानी चूंकि 29 के चांद के हिसाब से हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं, इस वजह से ज़ैनब क्लासेस में ठीक 8:30 बजे यानी मजालिस का सिलसिला कायम रहेगा और मुख्तलिफ जाकिरीन खिताब करेंगे। वक्त के साथ आइएगा क्योंकि हमारे यहाँ टाइम की पाबंदी होती है, किसी का इंतजार नहीं होता। अब अगर आप हकीकी अदादार होंगे तो शहजादी को इंतजार नहीं कराएंगे, खुद बैठ करके शहजादी का इंतजार करेंगे ताकि हम वक्त से पहले पहुंचे और शहजादी का हम क्या करें? इस्तिकबाल करें। सलवात पढ़िए सब मिलकर। और एक चीज मैं और एक शुक्रिया अपनी आवाम का, अपने अज़ादारों का, अपने मातमदारों का, अपनी उन खवातीनों का, कौम की हमारी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां, उन अफरादों का शुक्रिया इस मिंबर से अदा करता हूं कि जिन्होंने यानी सीरत ज़ैनबी और सीरत फातिमी, सीरत उम्मे कुलसूम और खवातीन का किरदार अदा करने के लिए जो रूहानियात का सफर उमूमी ज़हनों तक पहुंचाना था, करबला को, करबला की सूरत अज़ा को जो उन्होंने एक एहसास इश्क हुसैन जो उन्होंने सफर किया, सफर इश्क हुसैन कि मौला हम वो लोग हैं जो इस साल नहीं जा पाए, तो मौला हम उसी की तासी करते हैं क्योंकि आप ही ने हमें रिवायतें दी हैं, आप ही ने हमें तरीका और सलीका दिया है, आप ही ने हमें बतलाया है कि अगर आप करबला ना आ पाए
तो जहां पर भी खड़े हो वहां से हमारी नीयत करके अगर सलाम पढ़ दोगे तो ज़ियारत हुसैन का सवाब मिल जाएगा। तो अगर हम उसी जमीन पर सिर्फ इस गरज से कि मौला हम इश्क हुसैन में चंद कदम आपके ऊपर निसार करना चाहते हैं और अपने शहर से अपने इलाके से चल करके रोज़े हुसैन तक जा रहे हैं ताकि ये सफर करबला के सफर में लिख दिया जाए, तो क्या ये हमारा सफर कबूल नहीं हो? समझ रहे? क्योंकि अच्छी चीजों को क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए, अच्छी चीजों को ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक चेहलुम जो खाली हम अपने घरों में, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में या अंजुमन के जरिए जो फैलाते थे चेहलुमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए, वो एक उमूमी मैसेज उमूमी अजहान तक नहीं जाता था। लेकिन जब हम सफर इश्क हुसैन करते हैं तब समझ में आता है कि हर कोई सवाल करता है कि ये क्यों निकल रहे हैं, किसके लिए निकल रहे हैं, आज क्या है। तब उमूमी ज़हनों में हम ये बात पहुंचा सकते हैं, आज इमाम का चेहलुम है, इमाम मजलूम शहीद हुआ था, इमाम की बहन आई थी करबला में, वो पुरसा दे रही है, हम भी जा रहे हैं आजादार बन के पुरसा देने के लिए। तो अब आप जरा सा बताइए कि हमारा चलना, हमारे रूहानी सफर, हमारी मानवियात, हमारी सखावतें, हमारी शुजाअतें, हमारा तौर, हमारा तरीका, हमारा शऊन, हमारा चलन, हमारा किरदार, हमारी सीरत, हमारा अखलाक, हमारा कैरेक्टर, सब लोगों की नजर में आ रहा है कि जब इतने अच्छे हुसैनी हो सकते हैं कि जो यहां से कितने शराफत से जा रहे हैं, न कहीं नारा है, न कहीं किसी को कोई तकलीफ है, जा रहे हैं तो पानी का भी इंतजाम है, जा रहे हैं तो शरबत का भी इंतजाम है, जा रहे हैं तो फल का भी इंतजाम है, जा रहे हैं तो सारी चीजों का भी इंतजाम है, और उमूमियत को बांटते जा रहे हैं। क्योंकि जो हाथ बांटना सीख जाते हैं वो लूटना नहीं सीखते हैं। तो इस तरीके से ये 40 माद, और मैंने खुद इस साल सुना कई से जिन्होंने अहले हुनूद हमारे बिरादरान जो थे वो कह रहे थे कि एक इनका जुलूस देख लो, ना कोई नारा है, ना कोई उधमबाजी है, ना कोई गाड़ी वाले गाड़ी वैसे चला रहे हैं, एक इनको देख लो और एक हमारे यहाँ देख लो कि कैसे नौजवान चलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हुसैनियत का पैगाम जा रहा है, और इसके लिए मैं तशक्कुर और शुक्रिया अदा करता हूँ कानपुर के तमाम मोमिन और मोमिनात का, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने इलाके का, कि जहां से यहाँ हरी कॉलोनी के ग्राउंड से लेकर के नवाबगंज करबला, छोटे छोटे बच्चे जो मासूम से थे लेकिन मासूमियत में भी कितने मासूम कदम हुसैन के नाम पर पड़े थे, मेरी जानें उन कदमों पर कुर्बान। सलवात पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।